عدالت عالیہ ملتان بینچ کا بڑا فیصلہ، نشتر اسپتال سے شعبہ آرتھوپیڈک اور نیورو سرجری وارڈز ختم کرنے کا حکومتی اقدام غیر قانونی قرار۔ عدالتی فیصلے پر شہریوں کے ساتھ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اور ساؤتھ پنجاب میڈیکل فورم کے عہدیداران خوشی سے جھوم اٹھے۔ عدالت عالیہ ملتان بینچ نے عوامی سہولیات اور بنیادی حقوق کے حق میں بڑا فیصلہ سنا دیا۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب اور وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی عدالت کو مطمئن نہ کر سکے۔ عدالت عالیہ نے استفسار کیا کہ جب الگ یونٹ بنا دیا ہے تو یہاں سے کیوں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ نے کہا کہ ایمرجنسی یہاں پر رکھیں گے، باقی شفٹ کر رہے ہیں۔ عدالت نے ریمارک دیے کہ یہ کیسے ممکن ہے ایک مریض ایمرجنسی سروس یہاں سے لے اور علاج کے لیے نشتر 2 جائے۔ عدالت نے شفٹنگ کے عمل کو روکتے ہوئے حکومت کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ آرتھوپیڈک اور نیورو سرجری کا ڈپارٹمنٹ اور جو ان کا وارڈ تھا یہاں سے شفٹ کیا جا رہا تھا۔ 25 جولائی کا نوٹیفیکیشن تھا گورنمنٹ آف پنجاب کا سیکٹری کا۔ تو آج ہائی کورٹ نے مسٹر جسٹس محمد طارق سلیم صاحب نے انتہائی مہربانی کی ہے، اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ تو کورٹ میں بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی ہے، تو کورٹ نے بھی آج جو ہے نا گورنمنٹ سے پوچھا ہے کہ پورے ملک میں خاص طور پہ پنجاب میں کوئی ایسا ہاسپٹل بتائیں ہمیں جہاں پہ دوسرا ہاسپٹل بنایا گیا اور اس ایک ہاسپٹل سے وارڈ یا کوئی اس کا ڈپارٹمنٹ ختم کر کے کسی دوسری جگہ شفٹ کیا گیا۔ ایسا ان کے پاس گورنمنٹ آف پنجاب کے جو نمائندگان تھے ان کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں۔ میں اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج آنریبل کورٹ نے سیکٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ جو ہیں پنجاب اور وی سی نشتر سے صرف ایک ہی یہ بات پوچھی، بار بار استفسار کیا کہ آپ پورے پاکستان میں کوئی ایک ایسی ایگزامپل دے دیں کہ جب کوئی نیا یونٹ بنایا جاتا ہے تو پرانے کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جج صاحب نے خود جو ہے اس میں ایگزامپل دی کہ کارڈیالوجی وارڈ جو ہے نشتر ہاسپٹل کے اندر کام کر رہا ہے، جبکہ علیحدہ سے کارڈیالوجی ہاسپٹل بھی موجود ہے، اسی طرح چلڈرن ہاسپٹل۔ سیکٹری ہیلتھ اور وی سی کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، تو آنریبل لارڈشپ مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے ان کو کہا کہ یہ ملتان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے، لہذا انہوں نے جو نوٹیفیکیشن تھا ڈیٹڈ 25/7/2024 اس کو معطل قرار دیا۔ اس موقع پر ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ نشتر 1 سے نشتر 2 ہسپتال کا فاصلہ 30 کلومیٹر ہے۔ نشتر ہسپتال میں 29 وارڈ، 1 آؤٹ ڈور اور 15 آپریشن تھیٹرز ہیں۔ کارڈیالوجی کے ساتھ نشتر ہسپتال بھی دل کے مریضوں کو سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ ہسپتال میں آرتھو اور نیورو سرجری کے 170 سے زائد بیڈ موجود ہیں۔ نشتر اور نشتر 2 دونوں ہسپتالوں کا فعال ہونا ہی عوام کے مفاد میں ہے۔ عدالت کا تاریخی فیصلہ مدتوں تک یاد رکھا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2 امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، جس میں ایک نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ اور آرتھوپیڈک وارڈ ہے، جو ٹراما کے پیشنٹس ہوتے ہیں، جو کریٹیکلی سک ہوتے ہیں، جو سیریسلی انجرڈ پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کی جو مینجمنٹ ہے، ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ امیڈیٹ ہونی چاہیے۔ اور اگر جہاں نشتر 1 سے جو مین نشتر اگر یہاں سے دونوں ڈپارٹمنٹ شفٹ ہو جاتے ہیں اور 30 میل دور کی 30 کلومیٹرز دور، جس میں کم از کم آدھا گھنٹہ ضرور لگ جاتا ہے ان پیشنٹس کو، اگر وہاں پہ شفٹ کیا جاتا ہے نشتر 2 میں، تو یہاں پہ یقیناً جو مریض ہوتے ہیں وہ رستے میں ہی میرے خیال پہنچنے سے پہلے ہی شاید ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ اس طریقے سے مینج نہ ہوتے۔ ہمارے پیشنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں نشتر کے حدود اربا میں بسنے والے جتنے بھی رہائشی ہیں، تو کیا جب وہ اس سیریس کنڈیشن کے ساتھ آتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں کہ ان کو 30 کلومیٹر جا کے وہاں پہ چیک اپ کرانا پڑے گا، جبکہ ایک ڈیڈیکیٹڈ اسپتال ہمارا پہلے سے موجود ہے۔ اور ایون جی ہماری خود سے ہم نے ایفرٹس بھی کی تھیں کہ نشتر اسپتال 1 کی طرح کا ایک ایسا ٹیچنگ اسپتال، ایک بڑا اسپتال ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ساؤتھ پنجاب میں اس طرح کا کوئی اور اسپتال نہیں ہے، جبکہ ہمارا سارا برڈن ہی نشتر پہ آ رہا تھا۔ تو اس کے بجائے کہ وہ ہمارا جو برڈن تھا اس کو کم کرتا نشتر 2 اسپتال، ان کے نوٹیفیکیشن کے بعد سے مجھے لگنا شروع ہو گیا تھا کہ وہ تو ہمارا بوجھ بڑھا رہا ہے، ڈبل کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر جو لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے نا وہ ٹراما نمبر 1 ہے۔ تو ٹراما جو پولی ٹراما جس کو کہتے ہیں، جس میں ایک پیشنٹ کو ہیڈ انجری بھی ہے، اس کی کوئی بون بھی فریکچر ہے اور ساتھ اس کو ابڈومینل ٹراما بھی ہے، ایسے پیشنٹ کو نہ تو آپ دور شفٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت قیمتی ہے اس کے لیے، اس کو اسی ہسپتال کے اندر ہر طرح کی ٹریٹمنٹ دینی چاہیے۔ اس موقع پر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے مٹھائیاں تقسیم کی۔ کیمرہ مین حسیب کے ساتھ ماہر عمران نواز، روہی، ملتان۔ رنگپور کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند، دریائے کٹاؤ بھی شدت اختیار کر گیا۔ کاشتکاروں کے زرعی اراضی، مکانات اور قبرستان دریائے کٹاؤ کی زد میں آ گئے۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ رنگپور کے مختلف مواضعات میں دریائے کٹاؤ شدت اختیار کر گیا۔
मौजा, बिराहमपुर, अमीरपुर, सुरबाना, गंजी, लश्करपुर, मक्कू, जमाल, फत्तू, फनक्का समेत मुतअद्दिद मुआज़ात में दरियाई कटाव जारी। काश्तकारों की सोना उगलती जमीनें दरिया निगलने लगा। इलाका मकीनों के मुताबिक बिराहमपुर में 40 साल से लोग दरियाई कटाव का शिकार हैं। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी मकानात दरिया बुर्द हो चुके हैं। कब्रिस्तान भी दरिया की नजर होता जा रहा है। सैलाबी पानी आकर चला जाता है, अगर कीमती ज़रई रकबे हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। हुकूमत की तरफ से आज तक कोई इमदादी रकूम फराहम नहीं की गई। महकमा अनार की तरफ से 60 करोड़ रुपए के फंड से तामीर सुपर बंद भी दरियाई कटाव की जद में आ चुके हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि नाकस मटीरियल और गलत नक्शों की वजह से सुपर बंद जमीनों को दरियाई कटाव से बचाव की बजाय खुद कटाव का शिकार हो रहे हैं। दरियाए चनाब का कटाव तेजी से रंगपुर शहर की तरफ बढ़ रहा है। मौजा, अमीरपुर, सुरबाना में पुख्ता सड़क का एक बड़ा हिस्सा भी दरिया बुर्द हो चुका। सरकारी स्कूलों समेत पूरी बस्ती को खतरा है, मगर इंतजामिया ने कभी तवज्जो नहीं दी। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि दरियाई कटाव से बचाव के इकदाम करने के साथ दरिया बुर्द होने वाली जमीनों का तखमीना लगाकर इमदादी रकूम फराहम की जाए। कैमरामैन राना महबूब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। वाली जिले इंतजामिया सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतहरिक डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराया ने तरीखेल कच्चे का विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खालिद जावेद गुराया ने सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कच्चा तरीखेल का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि कच्चा तरीखेल के इलाके में सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है, ताहाल पानी ने पक्के के इलाकों का रुख नहीं किया। गुज़िश्ता रात से सैलाबी पानी को मॉनिटर किया जा रहा है। सैलाब से पहले इस इलाके में ऐलानात करवाए गए थे कि कच्चे के मकीन नकल मकानी कर लें। फौरी तौर पर फ्लड रिलीफ कैंप भी लगाया गया था, जहाँ सांप काटने की वैक्सीन वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। सैलाबी पानी से 700 के करीब अफराद मुतासिर हुए। किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। जानवरों को सैलाब से पहले मुंतकिल कर दिया गया था। हमने इससे पहले ही यहाँ पे फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया था और पानी के आने से पहले हमने तमाम मसाजिद में ऐलान भी करवा दिया था, लोगों को कहा था कि आप यहाँ से निकल जाएं। फिर कल परसों हमने ये पुलिस के जरिए भी एक्टिविटी परफॉर्म करवाते रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बर वक्त आकर सड़क को तुड़वाया और अपनी निगरानी में कीमती सामान की मुंतकिली करवाई। अगर ये इंतजामिया थे अगर ना नहीं तो ये हो सकता इन्होंने कोई अमवात ही थी लेकिन आई बहुत वड्डा इन्होंने नुकसान थी गया। बाकी इन्होंने घर ने जरे पानी अंदर वड़ गया, इन्होंने दाने शाने भी समझ के खराब थी गए, पानी में वड़ गए। डिप्टी कमिश्नर जैसा शुक्रगुजार हाँ कि मुश्किल वक्त को सारे साथ लेता है, जिससे सारे साथ अपने करीबी रिश्तेदार साथ छोड़ गए, उन्हें साथ नहीं छोड़ा। मुश्किल वक्त सारे साथ निभाया होना। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया ने कश्ती में सवार होकर मुतासरा डेरों का भी मुआयना किया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। रहीम यार खान में बारिश के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल, मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। शहरियों के मामलात जिंदगी मुतासिर, कारोबार ठप हो गए। रहीम यार खान में बारिश के बाद लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। मैपको इंतजामिया ने शहर में बिजली की गैर एलानिया बंदिश कर दी। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से आवाम परेशान। शहरियों का कहना है कि मैपको की जानब से 16 घंटे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। मामलात जिंदगी मुतासिर जबकि कारोबार भी ठप हो गए हैं। मैं आपको इंतजामिया अमली इक़दाम करने की बजाय ख्वाबे खरगोश के मजे लूटने में मगन है। हमारा इलाका रहमान कॉलोनी सली रोड है। तकरीबन बारिश के बाद 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से ना पानी है ना मोबाइल चार्ज है। हर चीज़ से बिजली की वजह से हम बहुत तंग हुए हैं। और रेलवे चौक पे दुकान है, जो बिजली सुबह जाती है शाम को आती है, तो ना काम हो सकता है ना कुछ हो सकता है। तो बारिश के बाद जो है ना बहुत मुश्किल हुई है। शहरियों का कहना है कि मैपको इंतजामिया बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का फौरी खात्मा करे ताकि शहरियों का मयारे जिंदगी बुलंद हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में कायम रेहड़ी बाजार भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। पंजाब हुकूमत ने आवाम को घर के करीब सस्ती अशिया की फराहमी के लिए रेहड़ी बाजार कायम करने का हुक्म दिया था। मुल्तान में नाजायज मुनाफाखोर माफिया आवाम को हुकूमती रिलीफ की राह में रुकावट बन गया। हुकूमत पंजाब ने शहरियों को घर की दहलीज पर सहूलियात फराहमी के लिए रेहड़ी बाजार कायम करने का हुक्म दिया।
मुल्तान डिवीजन में मुख्तलिफ मकामात पर 14 रेडी बाजार कायम किए गए, जहां पर फल और सब्जियां सरकारी रेट पर फरोख्त करने की हिदायत जारी की गई, मगर इन रेडी बाजारों में भी अशिया महंगी फरोख्त की जा रही हैं। कोई फायदा नहीं, अभी वही रेट है, बल्कि ज्यादा रेट दे रहे हैं। बाहर से इधर उधर से मिलता है 160 रुपए किलो, ये 200 रुपए किलो बेच रहे हैं, कोई लिस्ट नहीं है। घंटा घर में कायम रेहड़ी बाजार में शहरियों का शिकवा करते हुए कहना था कि रेहड़ी बानों के पास हुकूमती प्राइस लिस्ट भी दस्तयाब नहीं, अशिया खुर्दोनोश भी महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। दूसरी तरफ रेहड़ी बाजार के दुकानदार रेट लिस्ट के हवाले से खातिर खा जवाब ही नहीं दे सके। ये रेट लिस्ट के मुताबिक ये 2 दिन हो गए हैं, ये डीसीओ साहब आया है, वो इंतजामिया से सारा कर कुर के फिर हमें रेट लिस्ट दी जाएगी। रोज आते हैं डीसीओ साहब, तो उनका चल रहा है। मुल्तान डिवीजन में सस्ती और घर के करीब अशिया खुर्दोनोश की दस्तयाबी के लिए 450 से जायद रेडियां लगाई गई हैं। शहरियों ने बाजार में सरकारी सतह पर अशिया खुर्दोनोश की फराहमी करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। शहर ओलिया में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम हो गए। सरकारी निरखों और मार्केट रेट्स में जमीन आसमान का फर्क बरकरार। शहरी अशिया खुर्दोनोश महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। मुल्तान में सब्जियों और फलों की मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंतजामिया सरकारी निरखनामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। अदरक का सरकारी रेट 552, मार्केट में 700 रुपए फी किलो फरोख्त। लहसुन की सरकारी कीमत 370, मार्केट में 460 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी निरखनामे में हरी मिर्च 105, टमाटर 84, प्याज 116 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में हरी मिर्च 190, प्याज 170, टमाटर 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। मार्केट में टिंडे 200, करेले 150, अरवी 250, भिंडी 220, शिमला मिर्च 200 और बैंगन 250 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक चौंसा और अनवर रटोल आम 176, फजरी 52 रुपए फी किलो है, जामुन 280, सेब 300, पपीता 400 रुपए फी किलो फरोख्त, आलू बुखारा 400, खुबानी 350 और अनार 500 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। अमरूद 250, आड़ू 300 और केले 200 रुपए फी दर्जन दस्तयाब हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन ज़ैन अहमद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। रोही बना रुझान के बासियों की आवाज। इंतजामिया ने रोत को ही रैलियों से मुतासरा इलाकों में इमदादी टीमें पहुंचा दी। तहसील इंतजामिया का कहना है किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। रुझान इंतजामिया रोही की खबर पर इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर रोद को ही रेलों से मुतासरा इलाकों में इमदादी टीमें पहुंचा दी। सैलाब की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतासरा इलाकों में पुलिस, रेस्क्यू, महकमा लाइफ स्टॉक और महकमा माद फ्लड ने रिलीफ कैंप कायम कर दिए। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है काफी कंट्रोल में है चीजें, और लेकिन गवर्नमेंट हर किससे लड़ने के लिए पूरी तैयार है। एमपीए सरदार खिजर हुसैन खान बाजारी, असिस्टेंट कमिश्नर रुझान और तहसीलदार का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि मुतासरा इलाकों में टीमें मुतहर्रिक कर दी हैं, अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। माल मवेशी और मुतासरीन को रिलीफ देने के साथ साथ रेस्क्यू भी किया जा रहा है। इमरजेंसी की सूरत में यहाँ पर महकमा रेवेन्यू, रेस्क्यू 1122, लाइफ स्टॉक, हेल्थ, एजुकेशन और पुलिस और इसके अलावा जितने भी इदारे हैं वो किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए मौजूद हैं। तहसील इंतजामिया का कहना था कि हंगामी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। कैमरा टीम के साथ असलम सागर, रोही, रुझान। मूसलाधार बारिश के बाद रहीम यार खान इंतजामी और म्यूनसिपल कमेटी मुतहरिक। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी राना महमूद अली ने शहर का विजिट किया। कहा कि शहर भर की सड़कों, चौराहों और गलियों से बारिश का पानी निकाल लिया गया है। रहीम यार खां में गुज़िश्ता रात रिकॉर्ड मूसलाधार बारिश हुई। शहर भर के गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। बारिश के बाद इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी इन एक्शन। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश का पानी म्यूनसिपल कमेटी ने बर वक्त साफ कर दिया। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी राना महमूद अली और सीओ जिला काउंसिल चौधरी मोहम्मद शफीक ने शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिला में गुज़िश्ता रात कई सालों बाद 138 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश हुई है। रात 11 बजे बारिश शुरू हुई है और 4 बजे तक कंटिन्यूसली बारिश रही है। तो लास्ट मशीनरी हमारी लगी हुई है, जो है ना मेन हमारे रोड है वहाँ पर हमारे शक्कर मशीनें लगी हुई हैं। हमारे तकरीबन 5 सेट जो है ना वो हमारे लगे हुए हैं। अभी हम इस टाइम खड़े हैं लीवर अंडरपास जो है ना, मेन जो है ना हमारा ये एरिया है जो लो लाइन एरिया है ना,
राना महमूद अली का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर खुरम परवेज की ज़ेर निगरानी शहर भर की सफाई की गई, जिसमें तमाम वसाइल और मशीनरी को मुकम्मल इस्तेमाल में लाया गया। ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी का कहना था कि शहर भर से बारिश के पानी को चंद ही घंटों में साफ कर दिया गया। इससे शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान।